দেশৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা যুৱতী হ'ব যুঁজাৰু বিমানৰ পাইলট। উত্তৰ প্ৰদেশৰ সানিয়া মিৰ্জা নামৰ যুৱতীগৰাকী যুঁজাৰু বিমানৰ পাইলট হ'ব আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে আজি এই বৃহৎ ঘোষণাটো কৰিছে। সানিয়া মিৰ্জা নামৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ যুৱতীগৰাকী প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুছলমান যুৱতী এগৰাকী যুঁজাৰু বিমানৰ পাইলট হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু এই খবৰ পোৱাৰ পাছতে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল সমগ্ৰ দেশজুৰি। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল, ভুৱা প্ৰচাৰ বুলিও বহুতে ক'ব খুজিছিল। বিভিন্ন ধৰণৰ মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল, কিন্তু সেই প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহক উৰ পেলাই আজি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে ঘোষণা কৰিলে যে এগৰাকী যুৱতী মহিলা যুঁজাৰু বিমানৰ পাইলট হ'ব। এগৰাকী টিভি মেকানিকৰ কন্যাই প্ৰথমবাৰলৈ উৰুৱাব দেশৰ যুঁজাৰু বিমান। সানিয়া মিৰ্জাক লৈ গৌৰৱ কৰিছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে। সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে গৌৰৱ কৰিবলগীয়া এক বিষয়। অৱনী চতুৰ্বেদীৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈছিল সানিয়া মিৰ্জা। সানিয়া মিৰ্জাই এই কথা উল্লেখ কৰিছে কিদৰে তেওঁ অৱনী চতুৰ্বেদীৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈছিল, তেওঁক আইকন হিচাপে অৰ্থাৎ আদৰ্শ হিচাপে লৈ তেওঁ আগবাঢ়িছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে। দেশৰ প্ৰথমগৰাকী মুছলমান যুৱতী যিগৰাকীয়ে পাইলট হ'ব, ফাইটাৰ পাইলটৰ বাবে তেওঁ সাজু হৈছে। ইতিমধ্যে দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাত উত্তৰ প্ৰদেশৰ ভিতৰতে শীৰ্ষস্থান লাভ কৰিছিল সানিয়াই। আৰু সানিয়াক লৈ ইতিমধ্যে উত্তৰ প্ৰদেশবাসী যথেষ্ট গৌৰৱান্বিত আৰু সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে এতিয়া গৌৰৱ কৰিব সানিয়াক লৈ। দেশৰ প্ৰথমগৰাকী মুছলমান যুৱতী হ'ব যুঁজাৰু বিমানৰ পাইলট। এই খবৰ পোৱাৰ পাছতেই কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। বহুতে ক'ব খুজিছিল যে এই খবৰটো নিশ্চয়তা নাই, এই খবৰটো ভুৱা হ'ব পাৰে ইত্যাদি ইত্যাদি। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমতো যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু এই সকলোবোৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ শেষত আজি সানিয়া মিৰ্জাক লৈ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি মন্তব্য কৰিলে তাৰ পাছতে দেশবাসীয়ে গৌৰৱ কৰিছে। এগৰাকী টিভি মেকানিকৰ কন্যাই প্ৰথমবাৰলৈ উৰুৱাব দেশৰ যুঁজাৰু বিমান। যুঁজাৰু বিমান উৰুৱাবৰ বাবে সানিয়া মিৰ্জা এতিয়া সাজু হৈছে। সানিয়া মিৰ্জাক লৈ গৌৰৱ কৰিছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে। সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে গৌৰৱ কৰিবলগীয়া এক বিষয়। দেশৰ প্ৰথমগৰাকী মুছলমান যুৱতী যুঁজাৰু বিমানৰ পাইলট হিচাপে সাজু হৈছে। সানিয়া মিৰ্জাক লৈ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী আজি যি ঘোষণা কৰিছে, এই ঘোষণাৰ পাছতেই সকলোৰে সৈতে প্ৰতিক্ৰিয়াবোৰৰ উৰ পৰিছে। অৱনী চতুৰ্বেদীৰ পৰা সানিয়া মিৰ্জাই অনুপ্ৰাণিত হৈছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে। তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে আইকন হিচাপে লৈছিল তেওঁ অৱনী চতুৰ্বেদীক, অৰ্থাৎ আদৰ্শ হিচাপে অৱনী চতুৰ্বেদীক গ্ৰহণ কৰি আহিছিল আৰু সেইদৰে তেওঁ আগবাঢ়িছিল। যি সপোন তেওঁ পুহি ৰাখিছিল সেই সপোন পূৰণ কৰিবলৈ গৈ আছে, বাস্তৱায়িত হৈছে তেওঁৰ সপোন। গৌৰৱান্বিত কৰিছে তেওঁৰ পিতৃ মাতৃ পৰিয়ালক, গৌৰৱান্বিত কৰিছে দেশখনক। দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাত উত্তৰ প্ৰদেশৰ ভিতৰতে শীৰ্ষস্থান লাভ কৰিছিল মেধাৱী ছাত্ৰী সানিয়া মিৰ্জাই। দেশৰ প্ৰথমগৰাকী মুছলমান যুৱতী হ'ব যুঁজাৰু বিমানৰ পাইলট। इस्लाम धर्म को मानने वाली एक बच्ची सानिया मिर्जा, जिस मिर्जापुर के एक कॉलेज से मैंने पढ़ाई की थी, वहां की सानिया मिर्जा ने फाइटर फ्लाइट कोर्स में दाखिला लिया और अपना कोर्स सफलतापूर्वक समाप्त करने पर वह देश की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट बनेगी। जानबूझकर इस बात को मैं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में अपनी लड़कियों के सामने में रख रहा हूं। आज की गर्ल्स भी किसी बॉय से, किसी लड़के से कम नहीं है, पीछे नहीं है। एक समय था जब लड़कियां केवल कुछ सर्विस सेक्टर्स में ही दिखाई देती। उदाहरण के लिए एजुकेशन और मेडिकल के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी काफी लंबे समय से रही है, मैं जानता हूं। मगर आज जीवन का शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां महिलाओं की भागीदारी न हो। एक समय था आर्मी में, सेनाओं में और हमारे पुलिस फोर्सेज में महिलाएं लगभग 9 के बराबर होती थी। और विशेष रूप से सेनाओं में कई ऐसे विंग्स थे जहां महिलाओं के लिए दरवाजे तो पूरी तरह से बंद थे। और आपको जानकर खुशी होगी कि आज महिलाएं वारशिप्स पर भी तैनात हो रही, युद्धपोत वारशिप्स। और सबसे भारत का मजबूत वारशिप जिसकी लॉन्चिंग आज के 15-20 दिन पहले मैंने की है, उस पर जब अपने महिला वुमेन ऑफिसर्स को तैनात हमने देखा और उनका जज्बा, उनका करिश्मा जो हमने देखा, मैं तो हैरत में था। आज दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड सियाचिन में भी महिलाएं तैनात हैं। सबसे ठंड जगह कुमार पोस्ट, डिफेंस मिनिस्टर बनने के दूसरे तीसरे दिन में अपने आर्मी चीफ को कहा कि मैं जाना चाहूंगा, मेरे वहां जाने की तैयारी करिए। मैं वहां गया, मेरा हेलीकॉप्टर वहां रुक नहीं सकता। पायलट ने मुझे बताया कि आप हमको रोटर चलाते रहना होगा और हम यहां रुक कर रोटर नहीं चला सकते। जब तक आप इस कुमार पोस्ट पर रहेंगे तब तक हम बराबर ऊपर उड़ते रहेंगे, यहां करेंगे इसकी फ्यूल, इसकी डीजल जम जाएगी।
मैंने एनडीए 149 कोर्स के लिए इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है और मैं फाइनली इसमें सेलेक्ट हो गई हूँ। 27 दिसंबर को मैं एनडीए ज्वाइनिंग करने जा रही हूँ। बात आती है मेरी स्ट्रगल की, तो मैंने अपनी जो स्कूलिंग है वो यहीं विलेज से की है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। और मैं साइंस स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा रुझान रखती थी और बचपन में मैं इंजीनियर बनना चाहती थी। तो उसके बाद मेरे विलेज में जो है वो साइंस स्ट्रीम वाज नो मोर फर्दर। सो मैंने आगे की तरफ मूव किया और मैं सिटी में मैंने एडमिशन लिया 11th में। मैं अपने स्कूल में स्कूल टॉप किया था और अपनी 12th की एग्जामिनेशन में बोर्ड्स में मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप की हूँ अपने बोर्ड से, यूपी बोर्ड से। और उसके बाद मैं अवनी चतुर्वेदी, जो कि फ़्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी हैं, वो हमारे इंडिया की पहली फ़ाइटर पायलट है। उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ मैं। इंस्पिरेशन मतलब जब मुझे पता चला कि वो इंडिया की पहली फ़ाइटर पायलट है, फिर भी वो 2015 में कमीशन हुई हैं, और जब मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ जब मैं इस चीज़ को जानी कि लड़कियां जो है 2015 से फ़ाइटर स्ट्रीम में इन्वॉल्व नहीं की जाती थी, कमीशन नहीं होती थी। तो मुझे एक पैशन आया कि मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है जो आजकल गर्ल कम्युनिटी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर करे। तो वहाँ से मैंने ये सपना देखा था और फिर एनडीए की वैकेंसीज़ आई। 19 सीट्स में से 2 सीट्स फ्लाइंग के लिए हैं, जिसमें मेरा दूसरा पोजीशन है, और मैंने एग्ज़ाम दिया और मैं फ्लाइंग के लिए सेलेक्टेड हुई। कैसा लग रहा है अंदर से, कितनी खुशी है आपको? देखिए, अगर आप इसकी बात करेंगे तो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि खुशी इसलिए है कि मैं हमेशा से चाहती थी कि लोगों को मोटिवेट कर सकूँ, जो है कि स्पेशली गर्ल कम्युनिटी है सोसाइटी की, उसको मैं हमेशा से चाहती थी कि हाँ, लड़कियाँ जो है वो पढ़े लिखें। जैसा कि हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि लड़कियों के जो पेरेंट्स होते हैं अपना सारा पैसा उनकी डाउरी में लगा के उनकी आगे चल के मैरिज कर देते हैं। हाँ, लड़कियां हैं जो, बहुत कम लड़कियां हैं जो बीएससी करती हैं, बीटेक कर रही हैं, जनरली लड़कियां 12th करती हैं, बीए करती हैं, दैट इज़ इट। तो ये मेरा एक पेरेंट्स का सपोर्ट था, मेरी मदर का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है, मेरे फादर का बहुत सपोर्ट रहा है कि हाँ बेटा, हम आपके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं डालेंगे, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वी विल सपोर्ट यू। तो उसी सपोर्ट से मैं कर पाई और काफ़ी खुशी है इस बात की कि मैं करने जा रही हूँ जो वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन है। जैसे अवनी चतुर्वेदी से मैं इंस्पायर होती हूँ, मे बी परहैप्स फ्यूचर में मुझसे भी काफ़ी लोग इंस्पायर होंगे।